Okay. Hello and welcome to another recording. Today's topic is numerical solutions to equation. Lecture 2 is missing, so let's record lecture 2 today. Equation x equals to 10 over e power 2x has one positive real root. Okay, just as a recall, numerical solutions is about using iteration to find roots, and we've done that um, in bits and pieces in the previous questions. These are all questions that are now put together in terms of past papers, and I will solve each of these questions. Some of these questions may have something new. Let's see what that new thing is. The equation this has one positive real root denoted by alpha. Show that alpha lies between 1 and 2. So this is about proving that alpha lies in an interval. So what you're going to do is you're going to create a function. So function of x is going to be x minus 10 over e power 2x minus 1. You can bring everything to one side in whichever way you want. You want to first cross multiply and then bring it. That's also fine. You calculate f of 1 and f of 2 both. So 1 minus 10 over e power into 1. That's minus 0.565 and 1.813. Change of sign indicates root. Okay, that's part 1. Then it says show that if a sequence of positive values given by the iterative formula this converges, then it converges to alpha. Now, what does converges mean? If you remember from iteration from the previous part, if I tell you that this process that you do is converging to 3.377, that means the values are rounding off to 3.377. Okay, in this case, what I want to show you is that if a sequence of values given, so the convergence of this will be the same as alpha. Now alpha is the root of this equation. So this question basically means कि जो इसका root होगा वही इसका भी root होगा. Okay, how do I prove to you that? मुझे सिर्फ ये prove करके दिखाना है कि ये जो है वो इसके बराबर आएगा. Okay, अब if you remember from the previous lectures, ये n plus 1 and n हमने खुद लगाए होते थे. तो ये if I remove the n plus 1, I get half ln 1 plus 10 over x. Okay, then I start cross multiplying, so 2x ln 1 plus 10 over x. How do I remove ln? I take it to the other side, it becomes an e. फिर e power 2x minus 1 हो गया, minus 1 नीचे, और फिर जगह एक्सचेंज. ओके, सो वही इक्वेशन बन गई जो पहले बनी हुई थी. जब भी ये सवाल आएगा कि शो दैट इफ अ सीक्वेंस पॉजिटिव वैल्यूज, तो आपके पास चॉइस है. आप चाहें तो इससे ये इक्वेशन बना लें या इससे ये इक्वेशन बना लें, ये आपकी चॉइस है. अनलेस आई गिव यू अ सेट वो कि आप इस कभी वो भी हो सकता है क्वेश्चन के. पार्ट 3. पार्ट 3 कहता है यूज दिस आइटरेटिव फार्मूला टू अल्फा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस. तो आप तो ये आइटरेटिव फार्मूला यूज करना है. हाफ ln 1 plus 10 over x. सही है. तो अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते थे. आप पहले कैलकुलेटर पे जो है वो x1 लिखेंगे. x1 इज़ द स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज़ फॉर यू टू डिटर्मिन. अगर आपने कोई इंटरवल प्रूव किया हुआ है तो उसकी आप मिड पॉइंट ले लें. इफ़ यू हैवंट प्रूव्ड एन इंटरवल देन यू कैन स्टार्ट विद एनी वैल्यू दैट यू वांट. तो हम क्या करते थे, हम करते थे पहले 1.5 इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे, and then you type this with answer in the
Okay, that gives me x2. I want each iteration correct to 4 decimal places, so 1.0184 rounds off to 1.02, 1.1906 rounds off to 1.19, 1.1203 rounds off to 1.12, 1.1476 rounds off to 1.15, and 1.1368 rounds off to 1.1, and this one rounds off to 1.14 as well. So 1.14 is my alpha. Okay, so that is how you do the iterative process. Okay, moving on to the next question now. A lot of these questions will have first part as differentiation, integration and so on. So सारे chapters यहाँ पे combine हो सकते हैं. Okay, हम एक एक करके देखते जाते हैं. The diagram shows the curve y equals to power 2x and y equals to 2 ln x when x equals to a. The tangents to the curves are parallel. Okay, so tangents to the curves की बात हो रही है, तो यानी dy by dx निकालना पड़ेगा. So dy by dx, so that alpha satisfies this equation. पहले मैंने differentiate कर लिया और दूसरे वाले को भी कर लिया. तो ये 2 into 1 over x हो जाएगा. Okay, then these two tangents are equal. That means that this should be the case. This 2 can cancel out, so this becomes e power 2x minus 3 equals to 1 over x. I don't need x, I need a instead. X की value a लगानी है, so 2a minus 1 over a. Okay, I need an ln instead of an exponential, and that is what the obvious thing to do is कि ln दूसरी side पे ले जाएं, so this becomes ln 1 over a, which becomes ln 1 minus ln a. And I think I have the proof. Ln 1 is 0, so 3 minus ln a, and half 3 minus ln a. Okay, I've proved to you that equation is there. It says verify by calculation that the root lies between. So I need to create a function. In this case, I'm going to create a function of a. फिर एक दफ़ा इसमें 1 लगाना है, एक दफ़ा 2 लगाना है. यार minus 0.5 and 0.84. Change of sign indicates root. Part 3. Use the iterative formula this. To calculate a correct to 2 decimal places. So a1 is obviously 1.5. Then I start doing my iterative process. I'm not showing you the calculator now. I've done this the previous question of 3 minus ln of answer. So a2 is 1.2973. It rounds off to 1.30. A3 is 1.3699.7, 1.3426, 0.34, 1.357, 1.
5 3 5. Okay, that was that question. Now in the next few questions, what you will see is let me just first do these questions and then I will come back to that question. मैं फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से मैं पहले ये दो सवाल आपको करके दिखा दूँ. अच्छा, इसमें क्या है एग्जांपल 10 में, नाउ दीज आर कॉम्प्लिकेटेड, इस तरह के आपको दो सवाल नजर आएंगे. रखा हुआ है एक, मैं चाहूँगा कि आप होमवर्क के क्वेश्चन करें. These questions are about proving, so they are about circular measure. Now this is one of the most difficult questions on न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस. इसका पार्ट 1 बहुत मुश्किल है. पार्ट 2 और 3 अगर आप देखें तो पार्ट 2 और 3 तो वही हैं जो पहले किए हुए हैं. तो मैं जो है वो आपको पार्ट 1 करके दिखाऊंगा और पार्ट 2 और 3 हम जल्दी से कर लेंगे. सही है. In the diagram, A is the point on the circumference of a circle with center O and radius R. A circular arc with center A. Okay, so this is a center. Meets the circumference at B and C. तो ये एक arc length है. The angle OAB is equals to x radians. The shaded region is bounded by AB, AC, and the circular arc with center A. The perimeter of the shaded region is equals to half the circumference of the circle. तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया. Shaded half of circumference of the circle. सही है. अब सर्कल का रेडियस जो है वो r है. सही है. This entire length is r. Okay. Now अब ये जाहिर सी बात है, ये रिलेशनशिप अगर दी हुई है तो इसी को यूज़ करना है. हम इसमें पहले थोड़ी बातें लिख लेते हैं. सर हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. ओके. फिर पेरीमीटर ऑफ शेडेड के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐड करना चाहिए, ए बी ऐड करना चाहिए, ए सी ऐड करना चाहिए और आर्क बी सी ऐड करना चाहिए. सही. अब ना मुझे ए बी पता है ना मुझे ए सी पता है, दोनों जो हैं वो इस सेक्टर के जो हैं वो रेडियस हैं. तो मुझे इस सेक्टर का जो है वो रेडियस भी नहीं पता. तो ए बी और ए सी निकालना पहला ऑब्जेक्टिव. अब जनरली जब मैं सवाल पूछता हूँ बच्चों से क्लास में तो वो कहते हैं कि सर ये आप लाइन ड्रॉ कर दें, ये 90 डिग्री. लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है. एक तो नज़र भी आ रहा है कि 90 डिग्री नहीं है, और दूसरी बात ये कि भाई कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए सर्कल की जो आपको प्रूफ करके दिखाए कि ये 90 डिग्री. अभी नहीं है प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकता. ओके. अब इसका सोल्यूशन है क्या कि अगर आपने ए बी निकालना है तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कॉर्ड के सेंटर में ड्रॉप करें एक लाइन, या मिड पॉइंट पर अगर आपने ड्रॉप की है तो ये पॉइंट एम जो है वो 90 डिग्री पे ड्रॉप हो रहा होगा और ये कॉर्ड का बिल्कुल सेंटर होगा. तो यहाँ पे एक क्या क्रिएट हो रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक राइट ट्राइंगल अब क्रिएट हो रहा है. ओके. जिसमें ये ए एम है, ये एंगल एक्स है और ये लेंथ जो है वो आर है. तो क्या मैं ए एम निकाल सकता हूँ, क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि cos x इक्वल्स टू ए एम ओवर आर. तो ए एम कितना हो जाएगा, आर cos x हो जाएगा. तो ए बी कितना हो जाएगा, 2r cos x हो जाएगा. यानी छोटे वाले सेक्टर का रेडियस कितना है, 2r cos x. तो ए सी भी कितना हो जाएगा, 2r cos x ही हो जाएगा. ओके. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2r cos x प्लस 2r cos x प्लस आर्क बी सी. अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू थीटा. सही. अब इस पूरे सेक्टर का थीटा क्या है, 2x है और इसका रेडियस क्या है, ए बी है. सो दिस इज बेसिकली ए बी इंटू 2x. ओके. और यहाँ पे पाई आर आया हुआ है तो 2r cos x ये बन गया 4r cos x. और यहाँ पे भी आ गया 2r cos x इंटू 2x. और r सब में कॉमन नज़र आ रहा है तो मैंने r सब में से कैंसिल कर दिया. ओके. तो ये बन रहा है 4 cos x प्लस 4x cos x इक्वल्स टू पाई. ऐसे ही कुछ प्रूफ यहाँ पे भी दिया हुआ है. सही. क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 4, यहाँ से cos x कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वो मुझे जिस तरह अरेंजमेंट नज़र आ रही है उसमें ये हुआ हुआ है पाई. तो cos x इक्वल्स टू पाई 4/4 प्लस 4x. x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ
सही है. सो दैट इज अ डिफिकल्ट 3 मार्क पार्ट. बाकी सारे पार्ट्स आसान है. आपने वही काम करने हैं जो आप पहले करते हैं. वेरीफाई करने के लिए फंक्शन बनाना पड़ता है, तो इसको इधर ले आए और फिर एक दफ़ा 1 लगा लें और एक दफ़ा 1.5 लगा लें. -0.167 and 0.6.4. Change of sign indicates root. Okay. Okay, then last part is iteration. I start off the iterative process with x1 equals to 1.25 end of the interval, and फिर मेरा बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही होगा जो पहले होता है. Minus pi over 4 plus 4 ounce. x2 आ रहा है. how many decimal places? 4 decimal places by iteration देनी है. ठीक है, आई थिंक ये रिपीट हो गया अभी से ही. तो x equals to 1.21. ओके, सो ये एक मुश्किल सवाल था. इसी तरह का एक और आपको होमवर्क के क्वेश्चंस में मिलेगा. प्लीज ट्राई दैट आउट. फर्स्ट पार्ट मुश्किल होता है, द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर विद इन देयर. ओके, फिर ऐसे ही और बहुत सारे सवाल आएंगे. अब किसी में डिफरेंशिएशन होगी, trigonometry होगा, किसी में इंटीग्रेशन होगी. सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट इंटीग्रेशन. नाउ इट इज गिवन दैट the integration of ln 2x dx equals to 1. We show that a is equals to half exponential 1 plus this, where exponential of x denotes x. Use the iterative formula this. Okay, तो अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे पहले इंटीग्रेशन से ये शो करना है. अब ln 2x की इंटीग्रेशन कैसे होती थी, हमने पढ़ा था कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होती है, उसमें आइलेट लगाना पड़ेगा. लेकिन मुझे तो यहाँ पे सिर्फ लोगैरिथमिक ही नज़र आ रहा है, तो लोगैरिथमिक तो ln 2x हो जाएगा. लेकिन उसके साथ अलजेब्रा क्या होता है, ये हमने पढ़ते हुए डिसाइड किया था कि जब भी ln 2x या tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन होगी, तो उसके साथ एक अलजेब्रा भी आ रहा होगा, दैट्स गोइंग टू बी 1. ओके, सो u इक्वल्स टू ln 2x एंड v डैश इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ये पहला स्टेप होता था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. 1/2x इंटू 2 एंड v इक्वल्स टू x. तो ये बन जाएगा vu minus vu dash. vu x ln 2x x and u dash 1 over x. So x ln 2x minus integration of 1, so x ln 2x minus.
भाई 1 to a, और ये इक्वल्स टू 1 पहले से पता है, सो a ln 2a माइनस a, 1 ln 2 माइनस 1। सो a ln 2a माइनस a माइनस ln 2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे ln 2 डिवाइडेड बाई a चाहिए। मैंने कहा a ln 2a माइनस a इक्वल्स टू ln 2, a कॉमन, तो ln 2a माइनस 1 इक्वल्स टू ln 2 ओवर a, 1 उधर चला जाएगा, 1 प्लस ln 2 ओवर a हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल लग जाएगा, तो उन्होंने उसको ex भी लिख दिया है, और हाफ आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपने आइटरेटिव प्रोसेस करना है। उसमें छोटी सी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि अब मैंने कोई इंटरवल आपसे प्रूव नहीं कराया, तो मैंने आपसे कहा है कि भाई ए जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 1 आप कुछ भी ले लें, आप 1.5 ले लें, आप 2 ले लें, आंसर आपका सेम ही है। ठीक है, मैंने कहा जस्ट एज गट फीलिंग मैं 1.5 ले लेता हूँ कि भाई मुझे लग रहा है कि आंसर जो है वो 1.5 के आसपास होगा, तो ये नहीं भी हुआ तो खुद ही एडजस्ट कर लेगा। आइटरेटिव प्रोसेस का फ़ायदा यही होता है। तो ये तो मैंने 1.5 इक्वल्स टू लिख दिया, और फिर मैंने रख दिया हाफ एक्सपोनेंशियल पावर 1 प्लस ln 2 ओवर आंसर, यार 2.1575, 2.16, ये 3 आ रहा है 1.8741, 1.87, 1.9674, और 93। ओके, तो 1.94 शुड बी माई फाइनल। मैं 2 से स्टार्ट करता तो शायद जल्दी आंसर आ जाता, बट इट डजंट मैटर, तो इटरेशन ज़्यादा कम। Okay, so the only part of the topic that is left now is this, where I teach you further trigonometric graphs. What are further trigonometric graphs? कुछ कुछ parts होंगे जिसमें अब आपको cosec x, sec x इनके graphs बना देंगे। तो पहले हम इनके graphs बनाना सीख लेते हैं, फिर ये वाला question भी कर लेंगे। इसमें कुछ बातें भी हैं देखने वाली, तो वो मैं कर लूँगा। Let's close this again. सही है, further trigonometric graphs आ गया हमारे। ओके, नाउ फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स होते हैं sec x, cosec x और tan x के ग्राफ्स। तो पहले मैं आपके सामने जो है cot x के ग्राफ्स, तो पहले जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पे एक sin x, cos x और tan x के ग्राफ्स बनाऊंगा। तो ये फिर इसी के नीचे जो है वो मैं बाकी ग्राफ्स भी तो ये tan x के लिए थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैं बना रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ इज y इक्वल्स टू sin x, और इसी के नीचे मैं बनाऊंगा आपके लिए y इक्वल्स टू cosec x का ग्राफ, बिकॉज cosec x इज 1 ओवर sin x। सही है, हमने बना लिया 90। अब आप चाहें, अब रेडियंस में बनाना पड़ेगा, तो मेरी आदत ये है कि मैं पहले डिग्रीज में बना लेता हूँ, और फिर उसको जो है वो रेडियंस में चेंज। ओके, लेट्स से मैंने 1 कंसिडर किया हुआ है, तो मेरा ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बन
ओके, सही है। अब इम्पोर्टेंट बात, कॉस एक्स क्या होता है, 1/sin x, यानी जो भी साइन एक्स की वैल्यूज आ रही होती हैं उनको 1 ओवर करना होता है। साइन एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, यहाँ पे जीरो आ रही है, यहाँ पे वन आ रही है, यहाँ पे जीरो आ रही है, यहाँ पे वन आ रही है, यहाँ पे जीरो आ रही है। अब वन वाली वैल्यू का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन वाली वैल्यू तो 1/1 वन ही रह जाता है। लेकिन अगर ओरिजिनल वैल्यू साइन एक्स की जीरो है जैसे इस पॉइंट पे, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे भी जीरो है, 1/0 फिर से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सेक एक्स के ग्राफ में, कॉसेक एक्स के ग्राफ में जो है वो एसिम्प्टोट्स आ रही होंगी। एक एसिम्प्टोट जो होगी वो यहाँ पे होगी 180 पे, और एक जो होगी वो 360 पे होगी, और एक इटसेल्फ जो होगी वो जीरो पे भी होगी। तो ये मैं जीरो वाली लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि ये ऊपर तक जा रहा है ग्राफ। ओके, तो अब ये ग्राफ बनेगा कैसे, ये 1/1 तो वन ही रह गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये 90 डिग्रीज बेसिकली मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। तो ये आप चाहें बाद में रेडियंस में चेंज कर दें। तो ये ग्राफ जब बनेगा वो यूँ करके बनेगा, और यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ -1 वाली वैल्यू फिर से -1 पे रह जाएगी। ये 270 है, ये 180 है, ये 360 है। तो cosec x का ग्राफ जो होगा वो ऐसे बनेगा। सही है। अब कहीं मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि cosec 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि ये 2x जो होता था वो श्रिंक करता था ग्राफ को। अब श्रिंक कैसे करेगा, जो वैल्यू अभी 180 पे एसिम्प्टोट आ रही है वो 90 पे आ जाएगी, और cosec 2x का ग्राफ जो होगा वो यूं करके नैरो हो जाएगा। अक्सर वो आपको लिमिटेड ग्राफ बनाने को कहेगा, वो पूरा 360 तक ग्राफ बनाने को नहीं। सही है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। सही, ये हो गया साइन एक्स और कॉसेक एक्स का ग्राफ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, कॉस एक्स का पहले ग्राफ बना लेते हैं। 90, 180, 70 एंड कॉसेक एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है। सही है। अच्छा, अब ये फिर से जीरो इन्फिनिटी वो सब आ रहे हैं। ये पहली वैल्यू है, ये यहाँ पे ऊपर कॉस एक्स जीरो है, तो नीचे इसका ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ आ जाएगा आपके पास, तो नीचे जो ग्राफ बनाना है वो सेक एक्स का ग्राफ बनाना है। अब ये मैंने डॉटेड लाइन क्यों बना दी है एक, क्योंकि मुझे पता है कि जब cos x जीरो था तो 1/0 करूंगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यानी ये 90 पे जो होगा वो इस तरह इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। ये वन से स्टार्ट होगा, ये यूं करके इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे जो 180 पे होगा वो -1 की वैल्यू है, तो वो -1/-1 जो है वो -1 ही रह जाएगा। लेकिन फिर से एक और इन्फिनिटी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे जनरेट हो, okay, so this graph will look like this, and then at 360 as well. 1, सही है। ये 1 पे इसलिए आया बिकॉज 360 पे पहले 1 था, तो 1/1 जो होता है वो 1 हो जाता है। बेसिकली sec x क्या होता है, 1/cos x। cos x की वैल्यूज वो 1 से डिवाइड होती रहेंगी। सही। अब tan x के ग्राफ में होता क्या है, tan x के ग्राफ पहले खुद ही इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ। नीचे वाला भी cot x के ग्राफ भी इन्फिनिटी पे जाहिर सी बातें जाता रहेगा। बना लेते हैं फिर से 90, 180, 260, 90, 180, 70। अच्छा, tan x का ग्राफ वैसा होता था, पहले भी एसिम्प्टोट पे जाता था, पहले भी इन्फिनिटी पे जाता था, तो ये मैंने इन्फिनिटी बना लिया। और tan x का ग्राफ ऐसे होता
ओके, ये tan x का ग्राफ होता है। cot x का ग्राफ कैसे होगा? cot x का ग्राफ होगा 1/tan x, विच मीन्स दैट कि मेरे पास जो जीरो वाली वैल्यूज थी वो इन्फिनिटी बन जाएंगी। सही है, तो यहाँ से एक इन्फिनिटी आ जाएगा। और यहाँ से भी एक इन्फिनिटी आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो इन्फिनिटीज थे, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 1/इन्फिनिटी जीरो होता है। तो यानी ये जो पहली एसिम्प्टोट थी जो 90 पे थी, तो 90 पे जो होगा वो अब जीरो आ जाएगा। और 270 पे भी जहाँ एसिम्प्टोट इन्फिनिटी पे जा रही थी वो अब जीरो पे आ जाएगी। तो अब ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ अब कुछ ऐसा बनेगा, जहाँ पे जाहिर सी बात है tan x का ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस था, वहाँ पे cot x का ग्राफ भी जो होगा वो बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा cot x का ग्राफ। अब ये ग्राफ्स आपको याद कर लेने। cot 2x के ग्राफ मैंने आपसे कहा, तो आपने श्रिंक कर देना है इसको, हर वैल्यू डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। cosec 2x एंड सो ऑन, ये सारे ग्राफ्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। अक्सर वो ग्राफ जो होगा वो लिमिटेड पोर्शन में आपसे कहेगा 90 to 180 या 0 to 90 है, इस तरह कहेगा। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को देख के ग्राफ बनाना है। अभी इस क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। इस पेज पे शायद जगह थोड़ी सी कम होगी, मैं एक पेज ऐड करूंगा ताकि मैं ग्राफ आपको सही दिखा सकूँ। लेकिन फैक्ट नीचे जो जगह है मैं कर ही लूंगा मैं। सही है, उसने कहा बाय स्केचिंग ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू cosec x एंड y इक्वल्स टू x फ्रॉम 0 to π। अब वो पूरा एंड तक जाने को नहीं कह रहा, वो आपसे 0 to π कह रहा है। अब आप चाहें तो इसको याद कर लें, चाहे तो हर केस में डिराइव कर लें। डिराइव करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, तो cosec x याद रखें। cosec x है वो 0 to 180 होता है, वो सिर्फ एक पैराबोला की तरह, क्वाड्रेटिक कर्व की तरह आ रहा होता है। सही है, अब इस पर दूसरा ग्राफ कैसे बनाने, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो अब मैंने डायरेक्ट रेडियंस में ही मार्क किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे रेडियंस में ही। ओके, मैंने कहा कि ये लेट्स से 1 कह लेते हैं। मैं ग्राफ भी थोड़ा सा वो छोटा बना रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि मुझे हो सकता है वैल्यूज बड़ी प्लॉट करनी। दूसरा ग्राफ मुझे पता नहीं क्या है। ये एक ग्राफ हो गया cosec x का ग्राफ। मैं सिर्फ cosec 2x अगर आपसे कहता तो आप उसको श्रिंक कर देते। ओके, दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ, ये यूं चला जाएगा। Okay, what is the other graph that I have to draw? The other graph is y equals to x by minus x. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक ग्राफ। नोटिस करें, क्वाड्रेटिक ग्राफ है। क्वाड्रेटिक ग्राफ में क्या होते हैं? टर्निंग पॉइंट होते हैं। तो आपने कहा कि सर आप जो है वो टर्निंग पॉइंट पहले निकाले। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करते हैं, हम डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं। ये बन जाएगा पाई माइनस 2x इक्वल्स टू 0। सही है, तो इसका टर्निंग पॉइंट आ रहा है पाई/2 पे। वाई वैल्यू क्या बनेगी? वाई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं एक्स की जगह अब पाई/2 लगा दूंगा। सेवन है 2.47। ओके, तो 2.47 कहीं यहाँ पे आ रही होगी नाउ। और फिर एक्स इंटरसेप्ट अगर मैं निकाल लूँ तो एक बन रहा है 0, एक 2, एक पाई। ये ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का बन रहा है। अब ये ग्राफ जाहिर सी बात है आपको सोच के बनाना पड़ेगा, बाय द 3 मार्क क्वेश्चन। ओके, वो क्या कह रहा है? हैज एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, सो हम कह देंगे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, therefore 2 रूट्स। ओके, show that the equation this can be written in the form this। तो हम लिख के बता देते हैं। हमें पता है cos x को sin x पे चेंज करना है। मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया 1/sin x इक्वल्स टू, और मैंने ये दूसरी साइड पे एक्सपैंड किया हुआ था तो मैं एक्सपैंडेड फॉर्म ही ले लेता हूँ, x पाई माइनस एक्स स्क्वायर।
ओके, नज़र आ रहा है कि कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है। तो 1 इक्वल्स टू एक्स बाय साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन, सही है। फिर एक एक्स बाय साइन एक्स डिनोमिनेटर में आना है और 1 इधर आना है, और 1 के साथ एक्स स्क्वायर साइन एक्स ऐड होना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। हो गया प्रूफ? आई थिंक दैट्स द प्रूफ। Okay. Then says the two real roots of the equation this are denoted by alpha and beta, where alpha is less than beta. तो इसका नाम alpha रख दिया उसने, इसका नाम beta रख दिया. Use the iterative formula. उसने iterative formula correct to 2 decimal places. Give the result of each iteration correct to 4 decimal places to find alpha. सही, अब अल्फा ढूंढना है। अब अल्फा किस इंटरवल के बीच में? ये 0 to π/2। π/2 क्या होता है? कैलकुलेटर पे मैंने निकाला, π/2 होता है डेसिमल्स में 1.57। अब मैं चाहूँ तो 1.57 से भी शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है वो 0 to 1.57 के बीच में है, तो मैंने 1.57 और 0 का जो है वो मिड पॉइंट निकाल लिया, और वो बनता है 0.78। पाई/4 ही कह देते हैं ना उसको। मैंने कहा x1 जो है वो मेरा π/4 है। ओके, x1 जो है वो मेरा π/4 है। अब मैं आइटरेशन करना स्टार्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, मैं केयरफुली ज़रा कैलकुलेटर पे लिखूँ अपने। सही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैं कैलकुलेटर पे क्या लिख रहा हूँ। मैंने कैलकुलेटर पहले इंसर्ट कर दिया। मैं कैलकुलेटर पे पहले इंसर्ट कर दिया π/4, तो शिफ्ट सही है, और फिर मैं लिखूँगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर स्क्वायर टू फाइन ऑफ आंसर, शिफ्ट बाय मैं कैलकुलेटर सेट इन, ये दोबारा करना पड़ेगा। 1 प्लस आंसर स्क्वायर इन, और तो x2 बन रहा है 0.6465, that rounds out to 0.65। 3 बन रहा है 0.6614, rounds off to 0.66। 0.657 4, that rounds off to 0. तो अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया 0.6। ओके, फिर वो कहता है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ बीटा करेक्ट टू 2 डेसिमल पे। अब डिड्यूस का है, यानी पिछले पार्ट से कुछ डिराइव हो रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अब ऑब्जर्वेशन है कि ये देखें, जो आपने नीचे क्वाड्रेटिक बनाया, ये भी एक सिमेट्रिकल ग्राफ है और ये भी एक सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो ये जो रूट्स होंगे वो भी सिमेट्रिकल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितना अल्फा का डिस्टेंस यहाँ पे है, जो कि मेरे पास अभी 0.66 आया है, उतना ही बीटा का डिस्टेंस यहाँ से होना चाहिए। तो यहाँ से बैकवर्ड्स कैसे जाऊँगा? मैं सिंपली कह दूंगा बीटा इक्वल्स टू π-0। सही है, मैं उतना ही पीछे चला जाऊँगा जितना मैं 0 से आगे गया था। सो 0.66 π-0.66 क्या हो जाएगा? इस 2.48। ओके, तो मैंने डिड्यूस कर ली वैल्यू, मुझे जो है वो सॉल्व नहीं करना पड़ा, मैंने डिड्यूस की है। अब अगर आप आइटरेटिव फार्मूला से करना चाहते हैं तो आप कैसे कर लेते हैं? तो ये एग्जाम में जाता है, इससे 1 मार्क क्वेश्चन के प्रोसेस के आंसर, प्रोसेस कोई नहीं है, सिर्फ आंसर का मार्क है।
तो जो है आप चाहें तो ये दोबारा आइटरेशन कर लें। इस दफ़ा जो वैल्यू है आप π/2 से बड़ी ले लें, आप ले लें 3π/4। इफ़ यू स्टार्ट दिस प्रोसेस विथ 3π/4, you will see that it converges to 2.48. Okay, you can do the iteration again. So it depends on what your starting point is. It leads you to that very route whenever you are solving questions. Okay, that is the end of the topic. I hope this completes everything that is there on the syllabus, and we continue. Thank you for watching. Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go! At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.